Namaste, dear all students. Now we are going to start today our lecture number 1. Now in that lecture we are start with the actual syllabus of CBSE class 7. Now in that lesson number first, name of that lesson is here integer. Now see here today we are going to learn a little bit introduction related to the integer number system. But while studying that integer number system, now let us take one recap on the previous number system which we learned in a previous classes. Now see student, the number system is started from the natural number. The number system started from natural number. The natural number are those number which we can count, means the natural number are also called as a counting number. Now see here, the example of natural numbers are means 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट. जो भी काउंटिंग नंबर है वो काउंटिंग नंबर को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है. ठीक है. फिर से ये जो नंबर है ये नंबर को और दो नाम दे चुके हैं. पहला जो है पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड नाम जो दिया है उसे नॉन नेगेटिव इंटीजर. राइट. अगर आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव इंटीजर मींस द नंबर व्हिच मींस दिस इज आल्सो नेचुरल नंबर एंड नॉन नेगेटिव integers, right? This is also called as the non-negative integers. Now the second number system is the whole number, right? The whole number are called as, means see the definition of whole number. जब आप जीरो को इंक्लूड करते हो किसमें? नेचुरल नंबर में, तब उसे बोला जाता है होल नंबर. राइट. मीन जैसे कि यहाँ पे कंसीडर कर लो, ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 ये तो है क्या पे. जैसे आप ये जो जीरो है, फिर अगर इसमें जीरो को अगर आप ऐड करोगे तो ये बोला जाता है आपका मींस होल नंबर का सेट. सी स्टूडेंट हियर this 1 2 dot 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 these numbers are called as here which types of number? Natural number, right? These numbers are called as natural number. means मैं 1 2 3 4 dot 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 ये नंबर की बात कर रहा हूँ, plus here 0. now see here the definition of whole number is here. The definition of whole number, here we can say that the collection of 0 and the natural number are called as here the whole number. देख लो एक बार फिर से, जब आप नेचुरल नंबर में 0 को ऐड करते हो तब जो सेट आपको मिलता है वो सेट को बोला जाता है यहाँ पे होल नंबर. इस आपको अगर डेफिनेशन पूछी गई, द इंक्लूडिंग जीरो इन अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एज हियर द होल नंबर. राइट. नाउ after that the next definition or the next number system is here integer number. What is mean by integer number? Now let us see student, up till now here we learn two types of number system. First one is here natural number, second one is here whole number. Now let us see the definition of integer is dot 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 -3 -1 sorry -3 -2 -1 0 1 positive 2 again see here positive 3 dot 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 after that bracket complete. now see this is the set of integer number system. now let us see here the definition we can make here. now see student, from 0 1 2 3 these are the which types of number here? Whole number. These are here the whole number. now after that if you consider -1 -2 -3 these number are called as, see here non negative integer. here we can say that these are negative instead of calling negative integer, call it as
negative natural number, right? These are called as negative natural number. Now if suppose if you call these are the negative natural number, then the definition we can say that the collection of, see here, the negative natural number plus the whole number is equal to, here we are getting the set of integers, right? We see the definition of integer number is here the collection of negative natural number plus the whole number. Now see, this is the set of whole number plus this is the set of negative natural number. The set of negative natural number plus the whole number, here we are getting integer number system, integers number, here we are getting, right? But see student, after that this all the three types of number are denoted by one special symbol or a special character. Means here see, the natural number is denoted by capital N, right? After that the whole number is here denoted by W, right? And the integer number means here this is denoted by capital I or here capital Z, right? Now see here, if suppose if you are writing, we see if suppose I told including 0 plus here n, where n means what here natural number, because n को किसे डिनोटेट करते हैं नेचुरल नंबर से. Here we are getting which types of number, whole number, but whole number means the which types of number, W, because W is an indication of a whole number, right? In same way we can say that means I means here what, this is an indication, means this is denotion for the natural number system. Now while learning these three types of number, ये तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ने के बाद में एक और नंबर सिस्टम आती है जो कि आप क्लास 7 में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हो, ठीक है? अगर एक सीक्वेंस अगर किया जाए तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका इंटीजर, चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल, राइट? चैप्टर नंबर जो 3 है आपका वो है आपका रैशनल नंबर, ठीक है? जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा आपका रैशनल नंबर का, तब जाके मैं फिर से आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता दूं, लेकिन लिटिल बिट इंट्रोडक्शन आपको अभी भी मैं रैशनल नंबर के बारे में बताने वाला हूं. मींस दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. Our fourth type of number system is called as here rational number, and this rational number is denoted by, जैसे कि आपने नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया, होल नंबर को आपने w से डिनोट किया, इंटीजर नंबर को आपने i और z से डिनोट किया, उसी तरीके से रैशनल नंबर जो रहते हैं उसे आप डिनोट करते हैं q से, राइट? अब रैशनल नंबर मींस कौन से नंबर रहते हैं? ये जो नंबर रहते हैं स्टूडेंट, ये रहते हैं फ्रैक्शन. मींस ये जो नंबर रहते हैं इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रहते हैं. अब जो भी ये नंबर अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहते हैं, इसका मतलब जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस, the number which can be expressed as p upon q, एक कंडीशन यहां पे रहती है where p and q are इंटीजर. ये जो रहते हैं न्यूमरेटर का p और डिनोमिनेटर का q, ये दोनों के दोनों रहते हैं इंटीजर रहते हैं. इसका मतलब ये नेगेटिव भी रह सकते हैं और होल नंबर का भी सेट रह सकता है, राइट? वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड ये जो q रहता है, अब q रहता है, इसका मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर रहता है ये कभी भी जीरो नहीं रहता है. ये बन गया आपकी डेफिनेशन, राइट? बट स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, जैसे कि सर यहाँ पे लेसन नंबर सेकंड है फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, लेसन नंबर थर्ड जो है रैशनल नंबर है. अगर मान लो मैं यहाँ पे आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ. अगर सर हमने 3/4 लिखा, ये फ्रैक्शन है या डेसिमल, फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है,
ठीक है, आपका कंफ्यूजन क्लियर कर लो। इसका मतलब आपको जो पढ़ना है व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस कौन सा है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये 3/4 लिखा, क्या सर -3/4 ये फ्रैक्शन है क्या, यह रैशनल नंबर है क्या सर? यहाँ पे 1/2 ये फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है? मींस 9/5 ये फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है? अब एक चीज याद रख लो, फ्रैक्शन मींस क्या रहता है, फ्रैक्शन मींस क्या रहता है, जो नंबर रहते हैं वो मींस जो नंबर रहते हैं वो आप एक्सप्रेस करते हो कौन से फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, राइट? जो नंबर है वो कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, P/Q के फॉर्म में। बट यहाँ पे ये जो P मींस कंडीशन जो रहती है, कौन सी कंडीशन, वेयर यहाँ पे देख लो, ये जो P एंड Q रहता है ये कौन से नंबर रहते हैं आपके, नेचुरल नंबर रहते हैं। ये कौन से नंबर रहते हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर रहते हैं। मींस बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन होता है, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नाम के लेसन को रैशनल नंबर ही क्यों नहीं बोलते, या तो रैशनल नंबर के लेसन को फ्रैक्शन ही क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आने वाले इन सीक्वेंस में लेसन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने को पढ़ना है। मींस सब मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शन एंड व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर, राइट? मींस इसका मतलब यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि P/Q where P and Q means belongs to which number system, natural number system। इसका मतलब यहाँ पे जो भी फ्रैक्शंस रहते हैं वो पूरे के पूरे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। फ्रैक्शन में कभी भी जीरो नहीं आएगा, राइट? यहाँ पे देख लो, अगर नेचुरल नंबर किया जाए तो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर का है। बट उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप मिस जो है वो कौन से नंबर है, रैशनल नंबर, राइट? कौन से नंबर पढ़ना है, रैशनल नंबर। जब आप रैशनल नंबर पढ़ने जा रहे हो तो क्या सर व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर? ए जो नंबर रहते हैं ए बी इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q रहते हैं, वेयर यहाँ पे ए जो P एंड Q रहता है ये कौन सा नंबर सिस्टम रहता है, यहाँ पे इंटीजर रहता है। स्टूडेंट डिफरेंस कहां पे रहता है, जो यहाँ पे फ्रैक्शन में P/Q के फॉर्म में तो रहते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि 1/3 ये क्या है, फ्रैक्शन भी है रैशनल नंबर भी है, राइट? मींस -3/4 सिर्फ ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्यों ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि -3 ये कौन से नंबर सिस्टम में से आता है, इंटीजर नंबर सिस्टम में से। इस -3 -2 -1 यहाँ पे देख लो P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ये P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर रहते मींस वो कौन सा नंबर बन जाएगा आपका, रैशनल नंबर बन जाएगा। मींस ऑल पॉजिटिव फ्रैक्शन all positive rational number are called as fraction। बट सी ये पहला स्टेटमेंट है, जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, देख लो जैसे कि रैशनल नंबर बन गया लेकिन दोनों के साइन न्यूमरेटर की भी पॉजिटिव है डिनोमिनेटर की भी पॉजिटिव है। 1/2 क्या है आपका, यहाँ पे ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है। क्यों फ्रैक्शन है, मींस ऑल फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शंस रहते हैं वो पूरे के पूरे क्या रहते हैं, रैशनल नंबर रहते हैं। बट पूरे के पूरे जो रैशनल नंबर रहते हैं वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं रहते। जो भी नेगेटिव रैशनल नंबर्स आ जाते हैं वो पूरे के पूरे क्या बनते हैं, फ्रैक्शन बनते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा -1 अपॉन यहाँ पे -2 इज इक्वल टू, राइट? ये फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है? स्टूडेंट ये फ्रैक्शन भी है रैशनल नंबर भी है। फ्रैक्शन कैसे बन जाएगा, जैसे कि देख लो यहाँ पे माइनस माइनस अगर कट होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव 1/2। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, पॉजिटिव 1/2। अगर पॉजिटिव 1/2 अगर मिल गया तो पॉजिटिव 1/2 आपका क्या बनेगा, ये फ्रैक्शन भी बनेगा, f मींस फ्रैक्शन, और a क्या बनेगा, r मींस क्या बनेगा, रैशनल नंबर ही बनेगा। होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं समझ में आए तो मैं आपको फिर से दो स्टेटमेंट बताता हूँ किसके रिलेटेड, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के रिलेटेड। स्टूडेंट जितने भी पॉजिटिव फ्रैक्शन है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, कौन से फॉर्म में, P/Q में, उसे आप क्या बोल सकते हो, फ्रैक्शन बोल सकते हो। और जो भी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव जो भी नंबर है कौन से फॉर्म में, P/Q में, उसे आप क्या बोल सकते हो, रैशनल नंबर बोल सकते हो। मींस एक ही चीज याद रखना है, जो डोमेन रहता है मींस यहाँ पे
जो p और q जो बिलोंग्स करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, वो कहां से रहते हैं, नेचुरल नंबर में से रहते हैं। यहाँ पे रैशनल नंबर में क्या रहता है, मींस नंबर तो रहता है इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर ये जो p एंड q जो रहता है वो कौन सा फॉर्म का रहता है, मींस कहां से नंबर सिस्टम रहता है, उसका डोमेन क्या रहता है, वो रहता है यहाँ पे इंटीजर नंबर सिस्टम। Now the next topic is here comparison of integer. Now see student, we previously we learned in same lecture integer means here integer means here the number from -.....-3 -2 -1 0 +1 +2 3 ... right, means this is the set of integer. Now once we write this set of integer on the number line, now let me draw here the number line. What we have to write down, number line means see student, here if you draw this number on number line, here we can do like this. First of all see, let's draw here one line like this, right. Now while drawing this line at the center there is a 0, right, मींस अब मेरे को ये बताओ, आप यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, कंपैरिजन। अब 0 से बड़े आने वाले नंबर कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लो 1 ये 0 से बड़ा है, ये जो 1 है मींस 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। ये जो 2 है ये किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। ये जो 3 है ये किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। 4 जो है वो 3 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर्स आने वाले हैं वो नंबर को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, राइट। कहाँ से बोला जाता है, ये 1 से लेके ... यहाँ तक कौन सा बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। सेकंड जो है, अब मेरे को बताओ क्या ये 0 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है नंबर सिस्टम में से, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, 0 नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, राइट। अब 0 से स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो 0 से स्मॉलर नंबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा। अब -1 से भी स्मॉलर नंबर कौन सा है, यहाँ पे -2 मिलेगा। -2 से भी स्मॉलर नंबर कौन सा है, यहाँ पे -3 मिलेगा। मींस जो भी माइनस नंबर रहता है, जितना बड़ा माइनस नंबर वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है उसके प्रीसीडिंग और सक्सेसर प्रीसीडर से, राइट। जैसे कि -4 जो रहता है ये भी क्या है, स्मॉलर है, किससे, 3 से। क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 0 इज लेस देन 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3। आप ऐसे इंफिनिटी तक भी कर सकते हो, राइट। बट ये जो 0 है, 0 इज ग्रेटर देन -1 इज ग्रेटर देन मीन्स -1 इज लेस देन 0 मीन्स 0 क्या है, -1 से बड़ा है। -1 क्या है यहाँ पे, -2 से बड़ा है, राइट, मीन्स दिस इज -2 क्या है यहाँ पे, -3 से बड़ा है। -3 क्या है यहाँ पे, -4 से बड़ा है। डॉट 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 आप कहाँ तक भी लिख सकते हो स्टूडेंट। मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ इंटीजर अगर आपने किसी ने मीन्स यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ आपको समझने के लिए। मीन्स कंपेयर द फॉलोइंग, ये नंबर को आपको कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर जो ए है -3 एंड -1, कौन सा नंबर लिया मैंने, -3 एंड -1, इसमें से कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करते वक्त आपको 2 साइन यहाँ पे पुट करना है, एक तो ग्रेटर देन, दूसरी कौन सी यूज करना है, लेस देन यूज करनी है। हेंस यहाँ पे आप लिख सकते हो -3 इज लेस देन -1, राइट। क्योंकि यहाँ पे देख लो, अगर मान लो -3 ये अगर -2 से स्मॉलर होगा एंड -2 जो है -1 से स्मॉलर होगा, इसका मतलब क्या है, -3 ये क्या होगा, -1 से भी क्या होगा, स्मॉलर होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ले रहा हूँ, मींस -3 एंड यहाँ पे 0 है, राइट। मींस यहाँ पे क्या है, -3 इज स्मॉलर देन 0, क्योंकि देख लो ये जो नंबर सिस्टम के पॉजिटिव नंबर है, ये पूरे के पूरे जो नंबर है ये क्या है, मींस 0 से बड़े हैं, और इधर के जितने भी नंबर्स आते हैं वो क्या है, 0 से स्मॉलर है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे बोला ये पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, ये कौन से इंटीजर रहेंगे, फिर यहाँ पे ये रहेंगे आपके
निगेटिव इंटीजर रहेगी, ये कौन से रहेंगे, निगेटिव इंटीजर रहेंगे। बट बची बात जीरो की। अब जीरो क्या है, ये तो ना निगेटिव है ना तो ये क्या है, पॉजिटिव है। मींस जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव है, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -7 एंड यहाँ पे +1, राइट। अब देख लो स्टूडेंट, नंबर लाइन जब भी आपको याद करना है, मींस ये पूरे के पूरे नंबर अगर जीरो से स्मॉल है, क्या ये मींस इधर आने वाले मींस ये जो नंबर है इधर जीरो से स्मॉल है और ये क्या इधर जीरो से ग्रेटर है, इसका मतलब मींस ये जो -3 है ये -3 भी क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा। किससे, -7 तो पॉजिटिव इंटीजर मींस पॉजिटिव साइड में रहेगा नंबर सिस्टम के। मींस यहाँ पे लिख सकते हो -7 इज स्मॉलर देन 1। आफ्टर दैट दिस इज द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी जो आप मैं ले रहा हूँ वो है आपका जैसे कि -7 एंड -8, राइट। अब यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज होता है, आप बोलते हो -8 है, -8 ये बड़ा रहेगा किससे, -7 से, ये टोटली क्या है, रॉन्ग है, राइट। मींस यहाँ पे जो है -7 ये बड़ा रहेगा किससे, -8 से, क्योंकि चलो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। अब -7 -4 है, यहाँ पे -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा, -8 आएगा। आपने पहले क्या बोला था, यहाँ पे देख लो, ये जो जीरो है ये बड़ा है किससे, -1 से, -1 किससे बड़ा है, -2 से, -2 किससे बड़ा है, -3 से। अगर ये इधर के पूरे जो नंबर है मींस ये जो नंबर है ये स्मॉलर छोटे अगर रहते हैं तो यहाँ पे देख लो ये जो -7 रहेगा ये बड़ा रहेगा किससे, क्योंकि देख लो पहले कौन आता है, -7 आता है, ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, -8 से। दैट्स व्हाई मींस हियर -7 इज ग्रेटर देन -8, राइट। अगर मींस ये जो दो तरीके से आप ये नंबर को लिख सकते हैं। एक तरीका तो मैंने क्या लिखा, -7 ये बड़ा है किससे, -8 से। क्या मैं -8 इज स्मॉलर देन -7 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे भी बड़ा कौन दिखा रहा है, 7, और यहाँ पे भी बड़ा कौन दिखा रहा है, -7। नाउ सी दैट 3 क्वेश्चन, गिव योर हेडिंग, नेम ऑफ दैट हेडिंग इज हियर। सी स्टूडेंट, while writing, first of all you have to give the name of the chapter. While giving the name of the chapter one by one, you have to prepare your notes according to the video lecture, right? See here, every time I am mentioning here, for example here is video lecture 1, right? In what I have covered in video lecture 1, the topic number first one is introduction to the number system. Now second, I started with here comparison of integer, means कौन सा integer बड़ा है कौन सा integer small है। Little bit I gave here the introduction to the number line, ठीक है। मैं number line का concept इसके बाद में आपके साथ में एक और बार डिस्कस करने वाला हूँ, right? But you have to maintain all these things in your notebook according to the video lecture. Now after that, next topic here we have to study what is mean by predecessor and what is mean by successor. See student, that concept already we learned in class 7, sorry in class 6, ठीक है। लेकिन वो जो नंबर सिस्टम थी वो नंबर सिस्टम का नाम था होल नंबर सिस्टम। ये जो भी टॉपिक आप पढ़े हो कौन से नंबर सिस्टम के लिए पढ़े हो, होल नंबर के लिए। बट व्हाट इज मीन बाय सक्सेसर एंड व्हाट इज मीन बाय हियर प्रीडेसेसर, दैट वी हैव टू लर्न here, right? Now see here, if suppose I write here 0, now first topic, see here predecessor, right? Means here predecessor. Now in that predecessor, if suppose I write here 0 का predecessor कौन सा आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, पॉजिटिव वन, राइट। मैं यहाँ पे आपको नंबर लाइन के थ्रू से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रीडेसेसर मींस आगे वाला नंबर, सक्सेसर मींस क्या रहता है, बैकवर्ड पीछे वाला नंबर, राइट। जैसे कि मैं बोलूंगा 0 का प्रीडेसेसर कौन सा है, यहाँ पे 1 है, 1 का प्रीडेसेसर कौन सा है, 2 है। मींस ऐसा नहीं है 0 का प्रीडेसेसर क्या सर 3 बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं है, एक यूनिट छोड़ के। यूनिट मींस क्या रहता है, जब मैं नंबर लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा तब पूरी की पूरी डिटेल उसके रिलेटेड बताऊंगा। ये 0 to 1 मींस द प्रीडेसेसर ऑफ 0 इज हियर 1, the predecessor of 1 is here 2, the predecessor of 2 is here 3, the predecessor of 7 is here 6, means adding 1 to the number is called as predecessor. अब जैसे कि देख लो adding 1 तो सर आपने बोला क्या सर, आप 0 का predecessor 0 पे 1 ऐड करने के बाद में 1 लिखोगे, ये जो बन गया ये क्या है, predecessor of 1 है, राइट। अगर आप सर 1 है, 1 में जब आप 1 को फिर से ऐड करोगे तो क्या आपको 2 मिल गया, ये 2 क्या रहेगा, predecessor of 1 रहेगा,
प्रीडेसर ऑफ क्या रहेगा 1 रहेगा। क्या सर आप 2 में यहाँ पे 2 प्लस 1 अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा। 3 मींस क्या है प्रीडेसर ऑफ 2 है। मींस the predecessor of 2 is here 3, the predecessor of 1 is here 2, the predecessor of 0 is here 1. This is the concept of predecessor. Predecessor means adding 1 to the present number is called as predecessor. Now after that see there is a successor. Now what is mean by successor? जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया, जैसे कि देख लो सेम नंबर को मैं लेने वाला हूँ। जब 0 का सक्सेसर यहाँ पे कौन सा है 1 है, 1 का सक्सेसर यहाँ पे कौन सा आएगा 2 आएगा, 2 का सक्सेसर यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। जैसे कि 0 का आप निकाल रहे हो सक्सेसर, इसका मतलब 0 में -1 कर रहे हो। आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था 0 - 1, यहाँ पे क्या आएगा -1। बट व्हाट इज मीन बाय -1? -1 इज अ सक्सेसर ऑफ 0, राइट। सेम फिर से लिख रहा हूं मैं 1, दिस 1 इंप्लाइज दैट मींस यहाँ पे देख लो 1 में आपको 1 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 मिलेगा। ये 0 क्या रहेगा सक्सेसर रहेगा। ये सक्सेसर किसका रहेगा 1 का रहेगा। फिर से देख लो यहाँ पे 2 है, 2 इंप्लाइज दैट 2 - 1 यहाँ पे क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव 1 आ रहा है। पॉजिटिव 1 क्या है आपका सक्सेसर है। किसका सक्सेसर है ये 2 का है, राइट। सेम तरीके से क्या सर फिर निगेटिव नंबर आए तो क्या होगा, मैं कोई भी यहाँ पे निगेटिव नंबर देता हूँ। जैसे कि ले लो मैं यहाँ पे -8 का जो सक्सेसर है -8 का सक्सेसर यहाँ पे क्या आएगा। जैसे कि देख लो -8 - 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा -9 आएगा। अब देख लो यहाँ पे अगर नंबर लाइन में और खींचता हूँ इधर तो यहाँ पे -9 बन जाएगा। मींस अब देख लो सक्सेसर मींस पीछे वाला नंबर। मींस यहाँ पे देख लो 7 का -7 का प्रीडेसेसर क्या आएगा -6 आएगा। -7 का सक्सेसर क्या आएगा -8 आएगा। -8 का सक्सेसर क्या आएगा यहाँ पे -9 आएगा। नाउ दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सक्सेसर। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी वन मोर एग्जांपल आई वांट टू गिव रिलेटेड, जैसे कि मैंने यहाँ पे -8 का एग्जांपल दिया नेगेटिव नंबर सिस्टम के लिए। नाउ सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रीडेसेसर, राइट। नाउ सी स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन 1, this is a second example, this is a third example, this is a right, this is the first example in successor, this is a second example, ये third, ये fourth, right। अगेन यहाँ पे देख लो एक फोर्थ नंबर का एग्जांपल वो किसका है प्रीडेसेसर का है, राइट। जैसे कि देख लो कि सर आप मेरे को बताओ -9 का जो प्रीडेसेसर है वो प्रीडेसेसर कौन सा आएगा। जब -9 में मैं किसको ऐड करूंगा 1 को ऐड करूंगा, मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा -8 मिलेगा। जैसे ही -8 मिल गया -8 इज अ व्हाट प्रीडेसेसर। इस -9 के बाद में आने वाला नंबर कौन सा है, -9 के बाद में आने वाला नंबर कौन सा है -8। -8 ये मेरा क्या है प्रीडेसेसर है किसका -9 का। नाउ दिस इज अ कांसेप्ट। नाउ स्टूडेंट अगेन यू हैव टू गिव द टॉपिक इन योर नोटबुक predecessor and successor. Now while giving this topic or heading in your notebook, write down these are the examples of predecessor and successor, and you also write down the definition by your own, right। Successor predecessor means क्या होता है adding 1 to the present number is called as predecessor. What is mean by successor? Subtracting 1 from a present number is called as present number बोलो या given number बोलो, कोई भी गिवन नंबर के लिए। और आपके लिए मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है फाइंड प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर, फाइंड प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर, ठीक है। मींस ईच ऑफ द फॉलोइंग हर एक नंबर का आपको क्या करना है सबसे पहले प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना है, वही नंबर का आपको क्या करना है सक्सेसर फाइंड आउट करना है। जैसे कि 389 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 498, इसका आपको क्या करना है प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना है, इसका सक्सेसर फाइंड आउट करना है, इसका क्या करना है प्रीडेसेसर, इसका भी क्या करना है सक्सेसर करना है, राइट। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर हियर थर्ड -389, question number here 4 -498, right। After that question number 5 1000 sorry
999, इसका भी सक्सेसर प्रीडेसेसर आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में 889, राइट स्टूडेंट। टुडे हियर इन टुडेज लेक्चर आई गिव दिस मच is homework for you. Now one request to all, while performing the homework, now you have to forward the pic of your notebook in my personal WhatsApp window. Now see, today this is the last topic of our today's lecture, right student? See here we have to learn one more concept we have to add in your notebook, that is the absolute value. Now student, what is mean by absolute value? सबसे पहले एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि देख लो, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस इंग्लिश स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ a is a इंटीजर। स्टूडेंट यहाँ पे a क्या है आपका, इंटीजर है। अगर a यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे देख लो, मिस इस टाइप से आप सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़े हो, एब्सोल्यूट ऑफ a इज इक्वल टू क्या रहता है, a रहता है। मींस दिस एब्सोल्यूट ऑफ a इज इक्वल टू a रहता है, एंड माइनस एब्सोल्यूट ऑफ a इज इक्वल टू a क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। बट आपको पता है मैंने यहाँ पे a तो लिया है, बट ये a है क्या, ये a क्या है स्टूडेंट आपका, कोई भी क्या है, a क्या है आपका, कोई भी इंटीजर है, राइट। आफ्टर दैट सी, आप मैंने यहाँ पे आपको a के लिए बताया, माइनस a के लिए बताया। स्टूडेंट मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ, जैसे कि देख लो, एब्सोल्यूट ऑफ 5 एब्सोल्यूट ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे कि देख लो यहाँ पे मिस सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट ऑफ -6, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, पॉजिटिव 6। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, क्या सर जीरो का एब्सोल्यूट नहीं निकालता क्या, यस उसका भी एब्सोल्यूट निकालता। क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, एब्सोल्यूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। बट स्टूडेंट एक और चीज मैं लेक्चर में ऐड करना चाहता हूँ, दिस साइन इज कॉल्ड, दिस इज रीड एज एब्सोल्यूट ऑफ, इसे किस तरीके से बोलोगे, एब्सोल्यूट ऑफ, राइट। ये साइन को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट ऑफ बोला जाता है, ठीक है। सेम तरीके से आपको 2-4 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, कौन से हो, फाइंड द एब्सोल्यूट ऑफ, आपको एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 -9, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे -10, क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा -194, क्वेश्चन नंबर जो 4th रहेगा वो क्वेश्चन है आपका 365, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रहेगा 0, राइट। 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, हॉर्स में से है, आपको उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। फाइंड द एब्सोल्यूट ऑफ, यहाँ पे मैंने आपको इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई, जैसे कि 9 + 1 का एब्सोल्यूट आपको फाइंड आउट करना है, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, वो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिख लो, मीन्स 9 - 1, सॉरी मैं यहाँ पे 1 - 9 देता हूँ, इसका आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है। और ए बी गिव क्वेश्चंस है, आपको क्या है, होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट आपको 1 + 9 का एब्सोल्यूट नहीं आता है, 1 - 9 का एब्सोल्यूट नहीं आता है, एक ही काम करना है, 6th स्टैंडर्ड के जो बुक्स है वो बुक्स आपको ओपन करने, उसमें रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट एक 1 आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज पढ़ी है, वो एक्सरसाइज को एक बार फिर से यानी कि फिर से आप देख सकते हो, और देखने के बाद में ये पूरे के पूरे जो है प्रीवियस वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है होमवर्क का, मैं उसे क्वेश्चन नंबर 2 दूंगा, क्योंकि प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था वो बन गया क्वेश्चन नंबर 1। और भी आप होमवर्क सॉल्व करोगे, होमवर्क सॉल्व करने के बाद में आपको मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप विंडो में तो पूरे के पूरे होमवर्क क्वेश्चन जो है वो क्या करने हैं, सेंड करने हैं। थैंक यू।